Hello students, myself Pratik sir of Inspire Academy, and today we will be starting a new chapter, that is chapter number 4, History of India Arts. Points we will be studying in this chapter. So there are basically 4 points, main points we will be learning in this chapter. That is point number 1, what is art. In this we will be learning the definition of art. We'll understand what is art basically. Second point is Indian traditions of visual arts. In this we will be learning about what are visual arts, their definition, and what are the various types of visual arts. Third is Indian tradition of performing arts. In this chapter we will be learning what are the types of arts that are performed. And fourth is art, applied art, and professional opportunities. That is, what are the different types of art, what how they are applied, and what are the career opportunities. Professional opportunities means career opportunities in this field. So this is basically a very interesting chapter we will be studying. So point number 1, what it is a natural instinct to want to share our experience, wisdom, and also emotions. When that all instincts result into a beautiful creation, it is called as art. So basically this is a definition or human behavior in which we humans are willing to express our feelings or share our feelings, experience, emotion in some, so that form may be into any type, such as such a poem, dance, paintings, etc. There are various forms in which we are willing to express those things. So that can be anything, an experience, you're sharing an emotion, you're sharing your imagination, your ideas. All these things, when you put together into something creative, that creative thing is called as art. Okay, so with all the instincts result into a beautiful creation, it is called as an art. So all the beautiful things or words or your steps or your lyrics of a songs, all these beautiful things which you put down together and it is created into a beautiful song, it is created into a beautiful poem, beautiful dance steps, or beautiful letters which results into a beautiful story or a poem. All this beautiful creation results into a fine art. The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion, and his skills are the crucial factors at the root of artistic creation. So once you create an art, you are its artist. Like for example, if you are making something, you are its creator. So here, your power of imagination, your sensibility, that is your thinking, your state of emotion, that is what type of emotion you are while creating that art or creating that creativity, that is you are happy, that is you're sad, that is your feared, your uh, happy, joyed, etc. There are various emotions. So at that time, what is your state of emotion, what are you trying to put, how you are trying to put that skills, all these points are the important factors, that is the crucial factors, which is the main thing that artistic creation depends upon, that is your creation depends upon. So the art is basically of all these things. So the next point is visual arts and performing arts. So we know what is art, we have come to know. So the art is divided into various forms, from which the first form is into a visual arts and performing arts. So artistic creations are of two types, visual arts and performing arts. In Sanskrit, the first term or first type is called as Dirg Kala, and the second type is called as Lalit or Angik Kala. So I will try to explain it to you in Hindi. जो विजुअल आर्ट्स है, जो आँखों दे, the arts is divided into two types. I'm sorry, the art is divided into two types. The first is visual arts
एंड द सेकेंड इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मतलब जो चीज़ हम आँखों से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे कहा जाता है विजुअल आर्ट्स। उसको ही संस्कृत में कहा जाता है दीर्घ कला। और सेकेंड टाइप है परफॉर्मिंग आर्ट्स। जो आर्ट हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम डांस करते हैं, हम सिंगिंग करते हैं, हम पढ़ के दिखाते हैं, सो ये जो कला आती है उसे कहते हैं ललित कला संस्कृत में, और अंगिक कला। ओके, देन फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। There are two different distinct tradition of folk art and classical arts which we are going to learn ahead. So what is folk art? Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric time. मतलब folk art एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा ट्रेडिशन है जो हमारी पीढ़ियों से हम तक पहुंच रहा है। The expression of the folk art is a natural part of people's way of living. फोक आर्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज या कि जो प्रजाति, जो बीन्स, जो बहुत ज़मानों से कैसे रहती आ रही है, उनका रहन सहन कैसा आ रहा है नेचुरली, वो उस फोक आर्ट से एक्सप्रेस करते हैं। फोक आर्ट इज़ क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पेशल ग्रुप। फोक आर्ट एक ऐसा आर्ट है को ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। नंबर ऑफ पीपल, उसमें से ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 10, ग्रुप ऑफ 15, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में वो परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड इज क्लासिकल आर्ट। क्लासिकल आर्ट on the other hand is expressed within an established frame of consistent rules. It needs a prolonged training to master any form of classical art. क्लासिकल आर्ट मतलब जो आर्ट एक अकेला आदमी परफॉर्म कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, उसके लिए उसके कोई ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। उस आर्ट में उसको स्पेशली एक्सप्रेशंस देना पड़ता है। क्लासिकल आर्ट्स के एग्जाम्पल्स बताने चाहूँ तो उसमें आता है आपका क्लासिकल सिंगिंग, शास्त्रीय संगीत जिसे हम कहते हैं, और फिर क्लासिकल डांस बोलते हैं, भरतनाट्यम, कथकली, फिर और भी बहुत है। सो ये सब चीज़ें आती है क्लासिकल आर्ट में। स्टाइल इन आर्ट। सो व्हाट इज़ स्टाइल? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपनी स्टाइल में रहते हैं, मतलब हम खुद को अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो अपना स्टाइल होता है। सो आर्ट में भी एक अलग अलग टाइप के स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। सो ये इस स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। आर्टिस्ट्स टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट। ये मैंने अभी बताया कि हर एक व्यक्ति के, हर एक आदमी के, हर एक औरत के अलग अलग स्टाइल रहते हैं, अलग अलग काम करने का तरीका रहता है। उसी तरीके को कहा जाता है स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट। When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. Such tradition gets established as an art of style. So इसमें बताया गया है कि when a style is adopted, अगर आप कुछ अपनी स्टाइल से क्रिएट कर रहे हो और कोई दूसरा आपकी स्टाइल देख के वही स्टाइल में परफॉर्म कर रहा है, सीख रहा है, और वही स्टाइल किसी दूसरे को अच्छी लगकर वो खुद उसी स्टाइल में परफॉर्म करता है, सो ये एक ट्रेडिशन हो जाता है। सो ये ट्रेडिशन जो है कि एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट अडॉप्ट करते, उससे सीख कर, उससे देख कर अपनी स्टाइल में करने की कोशिश करता है, या फिर उसी स्टाइल में परफॉर्म करता है, उसी स्टाइल में कुछ बनाता है, और आगे जाके उसके जो शिष्य रहते हैं या फिर उसके जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो उस स्टाइल को कॉपी करते हैं, कॉपी मतलब सीख लेते हैं और उसी स्टाइल में परफॉर्म करते जाते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनाते जाते हैं, कुछ आर्टिस्टिक कुछ चीज़ें
करते जाते हैं। सो वो ट्रेडिशन जो शुरू रहता है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स और फ्रॉम द टाइम इट हैज़ स्टार्टेड, सो वो ट्रेडिशन को कहा जाता है आर्ट ऑफ स्टाइल। सो सेकेंड पॉइंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स, दीर्घ कला। द आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि दीर्घकाल विजुअल आर्ट्स माने जो आर्टिस्ट कुछ पेंट करता है, कुछ लिखता है, कुछ बनाता है, उसे कहा जाता है विजुअल आर्ट्स। जो हम आंखों देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस आर्ट को कहा जाता है विजुअल आर्ट। सो द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट्स। It is classified in two different types, as you can see: art of painting, folk styles of painting, classical styles of paintings, miniature paintings in manuscripts, written western styles of painting, sculpture art, folk styles of sculpture arts, classical styles of sculpture arts, architecture and sculpture. सो द फर्स्ट वन इज़ आर्ट ऑफ पेंटिंग। मतलब पेंटिंग का जो पेंटिंग की क्रिएशन और ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ अ पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ पेंटिंग। सेकेंड इज़ फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। जैसे कि फोक आर्ट मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि फोक आर्ट क्या रहता है। सो फोक आर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स, क्लासिकल टाइप्स रिलेटेड पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो स्क्रिप्चर्स रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं, उसमें जो पेंटिंग्स का बनाई जाती है वो पेंटिंग। सेकेंड, वेस्टर्न स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। वेस्टर्न स्टाइल्स मतलब जो वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न स्टाइल्स अडॉप्ट करके जो पेंटिंग बनाई गई है वो पेंटिंग्स। स्कल्पचर आर्ट मतलब मूर्तिकार, मूर्ति जो बनाते हैं। सो उसमें भी 3 टाइप है। फोक स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट्स मतलब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग, और फोक जो ट्रेडिशन है, जो प्रजाति है, अलग अलग प्रजाति है, उन्होंने अपने पूजा करने के लिए खिलौने खेलने के लिए जो खिलौने बनाते हैं वो होता है स्कल्पचर आर्ट्स। क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट्स मतलब भगवान की मूर्तियाँ, अलग अलग मूर्तियाँ जो प्राचीन काल से चलती आ रही है वो। और लास्ट है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। आर्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग्स आर 2-dimensional, for example sketches or paintings of nature, objects and individuals. सो पेंटिंग मतलब पेंटिंग एक 2-dimensional फिगर रहता है, जिसे कि स्केचेस किसी व्यक्ति की तस्वीर, पेंटिंग्स नेचर ऑफ पेंटिंग्स जैसे हम स्कूल में सीनरी बनाते हैं वो, किसी ऑब्जेक्ट पेंटिंग फॉर एग्जांपल वास या फिर किसी चीज़ की पेंटिंग्स, और किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की पेंटिंग। ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स आते हैं 2-dimensional टाइप्स ऑफ पेंटिंग में। दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेसिस सच एज रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्दन पॉट्स। सो पेंटिंग्स कहाँ कहाँ बनाई जाती है? पेंटिंग्स बनाई जाती है पत्थरों पे, दीवारों पे, पेपर्स पे, कैनवास रहता है अलग अलग टाइप्स का। अभी कैनवास मतलब अलग अलग टाइप्स के, मतलब किसी जानवर के चमड़ी पे भी बनाए जाते हैं, किसी कपड़े पे भी बनाए जाते हैं। सो ये अलग कैनवास रहता है जिस पे पेंटिंग्स बन सकती है। और एंड अर्दन पॉट्स मतलब हमारे जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं उस पे भी पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। The mural of Bodhisattva at Ajanta Caves is one of the finest examples of art of painting. I hope everyone have visited Ajanta and Ellora caves. Ajanta caves जो है महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्राचीन पेंटिंग है। उस पेंटिंग का नाम है म्यूरल ऑफ बोधिसत्व।
ये पेंटिंग बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है, और इसमें जो कलर्स यूज़ किए गए हैं पेंटिंग के लिए वो बहुत ही रेयर टाइप के हैं, मतलब नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है. So it is a one of the finest arts which is present from our ancient times. So it is the best example of art of the painting. Folk styles of painting. Rock paintings dating to Stone Ages have been discovered in many countries. यानी कि पत्थरों पे जो पेंटिंग्स की गई थी प्राचीन काल से, मीन्स इन द एज ऑफ स्टोन एज पीपल, आदि मानव काल के हम बोल सकते हैं. सो उस ज़माने के पेंटिंग्स जो केव्स में बनाए गए हैं यूजिंग नेचुरल कलर्स फ्रॉम रूट्स और ट्रीज़, सो वो पेंटिंग्स को कहा जाता है फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग. इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. द रॉक पेंटिंग्स इन द caves at भीमबेटका आर फेमस. सो भीमबेटका नाम की एक केव है, एक जगह है. उस केव के पेंटिंग्स अभी भी वैसे के वैसे है जो बहुत ही प्राचीन काल से मौजूद है. यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो शेयर की है भीमबेटका केव्स के पेंटिंग्स की. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. I hope everyone still knows what a World Heritage Site is. I have shared this information from in the previous chapter presentation. Rock paintings usually depict human, animal and geometric figures. So rock paintings में क्या रहता है, क्या प्रेजेंट करते हैं? यूजुअली डिसेप्ट मतलब क्या दिखाते हैं रॉक पेंटिंग्स, वो रहते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स और ज्योमेट्रिक फिगर्स. किसी ह्यूमन का फिगर रहता है, किसी जानवर का फिगर रहता है, कुछ कुछ आकृति रहती है, ज्योमेट्रिक आकृति, जैसे कि सर्कल रहता है, स्क्वायर रहता है, रेक्टेंगल रहता है, उसको मिला के कुछ अलग ही नई किस्म का डिज़ाइन बनाते हैं. सो वो सब चीज़ें रॉक पेंटिंग्स में आते हैं. हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स सीम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंजेस फ्रॉम द स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे कि इसमें लिखा है कि स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स, ये जो रॉक पेंटिंग्स है उनका स्टाइल जैसे कि युग, एक काल चेंज होता है, अलग अलग ज़माने चेंज होते गए. फ्रॉम स्टोन एज मतलब आदि मानव काल से लेके जब भी एग्रीकल्चर शुरू हुआ उस काल तक बहुत समय में उसके पेंटिंग्स की स्टाइल वो चेंज होती गई है. The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures, and also in the colors that are used. So यहाँ पे जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उन्होंने आदमी और जानवर और जो ज्योमेट्रिक फिगर्स उनकी आकृति के साथ साथ वो पेंटिंग्स में भी चेंजेस होते गए. सो इन पेंटिंग्स में क्या क्या आगे ऐड होता गया, उनमें ऐड होते गए फ्लोरा. फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फौना मतलब अलग अलग एनिमल्स और उनके स्पीशीज़. सो उनकी पेंटिंग्स दिखाने की कोशिश की गई और उसमें अलग अलग किस्म के पोर्ट्रेट्स भी और फिगर्स, नए फिगर्स भी मेंशन होते गए. ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर्स वर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग्स विच वर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस. सो इसमें इस दौरान पेंटिंग्स के लिए कौन से कलर्स बेसिकली यूज़ करते थे, बेस कलर बोलते हैं ना हम. पुराने ज़माने में अभी टाइप्स ऑफ कलर्स नहीं थे, गिन चुन के कुछ ही कलर्स थे, उसमें से थे ब्लैक कलर, वाइट एंड रेड कलर. सो इन्हीं कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था रॉक पेंटिंग्स के लिए और ये कलर्स बनाए जाते थे नेचुरल सब्सटेंस से. विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल, that they are natural surroundings and also the way they exploited available natural resources. So हमें रॉक पेंटिंग से क्या जानकारी मिलती है, हमें समझ में आता है रॉक पेंटिंग से कि पुराने
ज़माने के लोग उनके सराउंडिंग्स, उनके आजू बाजू की जो चीज़ें थी वो कैसी थी, वो उन्हें कैसे एक्सप्लोर करते थे, उन्हें कैसे ढूंढते थे और वो कैसे एक्सप्लोर करते थे, ये हमें इस रॉक पेंटिंग से समझ में आता है. द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिसेम्बल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स. Customs such as decorating the house walls and courtyards, rangoli, by drawing various figures and symbols or using panels of paintings to narrate stories helped to develop regional styles of folk paintings. So tradition of folk paintings जो रॉक पेंटिंग से आगे डेवलप हुए जो स्टाइल है उसे कहा जाता है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग. सो ये स्टाइल कैसे डेवलप हुई, ये फोक टाइप ऑफ पेंटिंग्स कैसे हुई? इन द फॉर्म ऑफ रंगोली. रंगोली मतलब हमारे कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ पूजा रहती है, तभी हम रंगोली बनाते हैं. सो ये भी हम जो रंगोली बनाते हैं उसे कह सकते हैं एक फोक टाइप ऑफ पेंटिंग, जिससे हम कुछ रिसेंबल करते हैं, जैसे कि फूलों की रंगोली बनाते हैं. सो पुराने ज़माने में फूल कभी कभी कुछ ड्राइंग्स अच्छे से बनाई जाती थी जो रिप्रेजेंट करती थी उस त्यौहार को. सो ये सब आता है फोक टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स में. क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स. द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल्स. देयर आर ऑल टुगेदर 64 आर्ट्स मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट. जो पुराने ग्रंथ है, एंशियंट ग्रंथ है, लिखा पढ़ी हम बोल सकते हैं, और फाइंडिंग्स जिसमें आर्ट्स देयर आर ऑल टुगेदर, उसमें 64 आर्ट्स मेंशन्ड है उन टेक्स्ट में. द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग इज मेंशन्ड एज अल्केयम और अल्केया विद्या इन दिस. जो आर्ट ऑफ पेंटिंग्स उस 64 आर्ट्स में से मेंशन्ड है उन टेक्स्ट में, उनमें से नाम है अल्केयम और अल्केया. ये जो दो शब्द है वो संस्कृत वर्ड्स है. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स. षडंगे, 6 मेन एस्पेक्ट्स. द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड these 6 aspects very minutely. जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत इस 6 एस्पेक्ट्स को, इन 6 आर्ट्स के स्टाइल को, इन 6 टॉपिक्स को बहुत गहराई से स्टडी किया. दे इंक्लूड रूपभेदा. रूपभेदा मतलब डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स. प्रमाण. प्रमाण मीन्स प्रोपोर्शनेट डिसेप्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ इमेज. प्रमाण इसे हम कह सकते हैं प्रमाण मतलब प्रूफ, एक टाइप का एक इमेज का प्रूफ होता है वो. भाव. भाव मतलब एक्सप्रेशंस. लावण्य योजना मतलब एस्थेटिक्स. सदृश्यता और रिसेम्बलेंस टू रियलिटी मीन्स अ क्लोज व्यू टू द रियलिटी. सदृश्यता. वर्णिका भंग कलर कंजम्पशन, कलर कंपोजिशन. वर्णिका भंग मतलब कलर के डिफरेंट कंपोजिशंस. सो ये 6 एस्पेक्ट्स बहुत माइन्यूटली हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने स्टडी किए हैं. आगमा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराणास, वास्तुशास्त्रास टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. सो जो पुराने मंदिर है, पुराने जो वास्तु है और वी कैन से आर्किटेक्चर्स, उनमें जो स्कल्पटिंग, उसमें जो मूर्तियाँ की स्कल्पटिंग की गई है, वो सब चीज़ रिलेटेड है हमारे रिलीजियस सेक्ट्स. मतलब रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पुराण में है. पुराण मतलब हमारे स्टोरीज़ और वास्तुशास्त्र के टेक्स्ट के आधार पर वो स्कल्पटिंग यानी कि वो मंदिर बनाए गए हैं और या फिर वो वास्तु से जोड़कर बनाए गए हैं, वास्तुशास्त्र से जोड़कर बनाए गए हैं. मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स.
The miniature paintings in the earlier manuscripts shows an influence of Persian styles. जो मिनिएचर पेंटिंग्स जो स्क्रिप्ट्स में थी, जो ग्रंथ में पेंटिंग्स छोटे छोटे मिनिएचर छोटे पेंटिंग्स जो थे, वो पहले जिससे उनको प्रेरणा मिली, इन्फ्लुएंस मिला, वो पर्शियन स्टाइल से इंस्पायर होके उन्होंने ड्रॉ करना शुरू किए और बनाना शुरू किए. द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सुल्तानेट्स. जो डेक्कन मिनिएचर स्टाइल जो है वो डेवलप हुए डेक्कन सुल्तानेट्स के अंडर. ड्यूरिंग द रीजन of Akbar, the Mughal emperor, the Mughal miniature style showing a blend of and Persian styles was developed. So जो मुग़ल एम्परर थे अकबर, उन्होंने उनके ज़माने में ये मुग़ल मिनिएचर स्टाइल्स पर्शियन स्टाइल से ब्लेंड करके जोड़कर उनसे मतलब एडॉप्ट कर कर मिनिएचर स्टाइल्स की शुरुआत की उस ज़माने में इन मुग़ल एम्परर. यहाँ पे मैंने एक मुग़ल मिनिएचर शेयर किया है जहाँ पे एक राजा या फिर एक आदमी एक औरत के साथ बैठ के लंच कर रहा है या लाइक ही इज़ हैविंग सम स्नैक्स और ही इज़ ट्राइंग टू फीड हर. सो ये पेंटिंग्स जो है वो ये मिनिएचर पेंटिंग है, वो एक स्क्रिप्ट पे थी जिसमें उस बात को बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया है. सो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द ब्रिटिश इन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. जो ब्रिटिश पीरियड था, जब ब्रिटिश राज था, तभी हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो बहुत प्रोत्साहित हुए यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से. दे टुक द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. An art school was established under the leadership of James Wales, a Scottish artist, in the times of Savai Madhavrao Peshwe in शनिवारवाड़ा in पुणे. एक आर्ट स्कूल बनाया गया उस ज़माने में जिसके लीडर्स थे, उनके लीडरशिप के अंडर जिनका नाम था मिस्टर जेम्स वेल्स. वो एक आर्टिस्ट थे जो स्कॉटिश आर्टिस्ट थे. उन्होंने उनके अंडर एक स्कूल बनाया गया. तभी उस ज़माने में पुणे में सवाई माधवराव पेशवे ये गद्दी पर बैठे थे और वो रहते थे शनिवारवाड़ा में. तो शनिवारवाड़ा में ही उन्होंने एक आर्ट स्कूल शुरू किया अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल. ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस. सो जो स्कॉटिश आर्टिस्ट थे जेम्स वेल, उन्होंने उस ज़माने में पोर्ट्रेट बनाई थी सवाई माधवराव पेशवा और नाना फडणवीस की. गंगाराम तांबट, अ मराठी आर्टिस्ट who worked with Wales, deserved a special mention here. He had made drawings of the rock-cut caves at Verul and Carle. Some of his drawings are preserved in the Yale Center of British Arts of Yale University. सो गंगाराम तांबट जो थे वो एक मराठी आर्टिस्ट थे जो जेम्स वेल्स जो स्कॉटिश आर्टिस्ट थे उनके साथ काम करते थे. उन्हें यहाँ पे स्पेशली क्यों मेंशन किया है कि वो एकमेव ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने रॉक कट केव्स, जहाँ पे केव्स है, जैसे कि आप जानते होंगे वेरुलची लेनी हम बोलते हैं, जैसे कि अजंता और एलोरा केव्स है, वैसे ही वेरुल की केव्स है, कार्ले के केव्स है, वहाँ पे उन्होंने उन केव्स में रॉक्स में स्कल्पटिंग की और उनकी कुछ ड्राइंग्स स्पेशली अभी भी प्रिजर्व है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश एट येल यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पे मैंने 2 फोटोज़ शेयर की है जिसमें जेम्स वेल्स की आर्टिस्टिक्स है जो है सवाई माधवराव पेशवा और नाना फडणवीस की, और यहाँ पे नीचे है गंगाराम तांबट विद हिज गुरु. Sculpture art. Sculptures are three-dimensional
that is, paintings are two dimensional, sculptures are three dimensional. It comes in the form of figures और images, जैसे कि 3D images हम बोलते हैं ना, 3D पिक्चर, जैसे कि हमारे सामने वो चल रहा है, हम उसे छू कर देख सकते हैं. सो ये सब चीज़ों को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल. तो स्कल्पचर्स आर थ्री डायमेंशनल सच एज इमेजेस, स्टैचूज, पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स with artistic embellishments. Embellishment मतलब artistic touch. For creating sculptures, either rock or metal or clay is used. Rock sculptures are made by carving. Metal sculptures are made with the help of molds, and clay sculptures are formed either directly with hands or by using molds. सो स्कल्पचर्स बनाने के लिए आइदर पत्थर या फिर मेटल या फिर मिट्टी, इसका यूज़ किया जाता है. रॉक स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं कार्विंग से. मेटल स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं मोल्ड से, अलग अलग सांचे रहते हैं. और क्ले स्कल्पचर जो रहते हैं वो हाथों से डायरेक्टली बनाए जाते हैं या फिर किसी प्रकार के सांचे यूज़ किए जाते हैं. द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलासा एट वेरुल, मतलब कैलाश टेम्पल वेरुल की लेनी, जो हमें कहा था वेरुल केव्स, वहाँ पे जो एक टेम्पल है वे कैलाश टेम्पल इज़ अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक. वो एक सिंगल रॉक पे पूरा स्कल्पचर बनाया गया है, वो पूरा मंदिर बनाया गया है एक सिंगल पत्थर पे, बड़े पत्थर पे. द लायन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर found at Sarnath is the national emblem of India. So we all know about our national emblem, that is the Ashok Stamp. It is also a sculpture. So the next point is folk styles of sculpture art. So we have seen folk styles of paintings. Now this is a folk styles of sculpture art. The sculpture art is also an ancient as art of paintings dating back to. सो जैसे कि रॉक पेंटिंग्स और कार्विंग्स वो जो प्राचीन काल से एट सिंस द टाइम ऑफ स्टोन एज पीरियड से चलती आ रही है, वैसे ही स्कल्पचर आर्ट्स भी बैक एट द टाइम ऑफ स्टोन एज से ही चलती आ रही है. कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन सेट टू बी द बिगनिंग ऑफ स्कल्पचर आर्ट. जो टूल्स कार्विंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो पत्थर से बनाए गए थे एट द बिगनिंग टाइम ऑफ द स्कल्पचर आर्ट. The customs or the custom of making clay images for rituals has been prevalent in India hence Harappan times. जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है हमारे पूजा के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, ये जो चलते आ रहे हैं क्ले इमेजेस की मूर्तियाँ जो हमारी पूजा अर्चा के लिए बनाई जाती है, वो बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है सिंस हरप्पन टाइम्स. It has continued till today in many regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Rajasthan, etc.
Classical styles of sculptural art. The Harappan seals, stone and bronze statues tell us about the 5000 years old or even older tradition of Indian tradition of sculptural art. जो हरप्पन के स्टैम्प्स है, सील्स बोले जाते हैं, और पत्थर और मेटल की, ब्रॉन्ज मेटल की जो स्टैचूज़ है, पुतले हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर जो है वो 5000 साल पुराने या उससे भी प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं. It is said that the tradition of carving out stone sculptures of larger size began in Mayuran period with the Ashokan pillars. सो जो ट्रेडिशन है ऊपर स्कल्पचर्स बनाने का, वो बहुत ही पुराने ज़माने से शुरू हुआ, यानी कि मयूरन पीरियड. हमारे राजा अशोक, उनके ज़माने भी पिलर्स, अशोकन पिलर्स जो है हमारा, वो भी स्टोन ही स्कल्पचर्ड किया गया है. मतलब एक स्टोन के ऊपर कार्विंग्स बना के वो पिलर तैयार किए गए हैं. द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्परर अशोक्स टाइम. जो सांची स्तूपा है वो भी अशोक का टाइम पे ही बनाया गया है और वहाँ पे उसकी स्थापना की गई है. हावेवर द ब्यूटीफुल स्कल्पचर एम्ब्लिशमेंट्स ऑफ द स्तूपा आर सपोज टू बी लेटर एडिशंस. जो स्तूपा बोलते हैं, उसमें जो स्तूपा है वो बाद में ऐड किए गए. द स्कल्पचर्स एट बारूट आर टेस्टिमोनीज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द स्कल्पचर इन इंडिया. द स्कल्पचर्स ऑफ बारूद, जो बारूद के स्कल्पचर्स है, बारहट के, वो बताया जाता है कि हमारे जो क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट की जो डेवलपमेंट है वो वो असेंबल करती है, जो हमें बताती है, एक्सप्रेस करती है कि हम कितने डेवलप हुए हैं उस काल से लेके उस काल तक. The tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries, as well as the stupa of Borobudur in Indonesia is the largest stupa in the world. It was built during the 8th-9th century CE. It was declared as World Heritage Site in 1991. जो ये बुद्धिस्ट स्तूपाज की जो उभारनी बोलते हैं, जिन्हें बना के खड़े किए गए थे, वो बहुत एक ट्रेडिशन शुरू हुआ. अशोका टाइम्स से जो शुरू हुआ वो शुरू होते ही चलते ही चला गया और बुद्धिस्ट टाइम्स तक और आगे अभी भी वो स्तूपा को लगाने में शुरू है. द स्तूपा एट बोरोदूर इन इंडोनेशिया. जो बोरोदूर इंडोनेशिया में एक जगह है, वहाँ पे एक स्तूपा है. वो सबसे बड़ी स्तूपा है पूरे वर्ल्ड में, और उसकी स्थापना जो हुई थी वो 8th और 9th सेंचुरी में हुई थी. और जो बोरोदूर स्तूपा है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी 1991 में. इंडियन आइकोनोग्राफी. The Gandhara school of art came into being in the 2nd century BCE in Afghanistan and neighboring regions. It had Greek and Persian influence. आइकोनोग्राफी मतलब एक प्रकार की आइकॉन, एक प्रकार की सिंबल हम बता सकते हैं. सो इंडियन आइकोनोग्राफी मीन्स इंडियंस में जो सिंबल्स है अलग अलग कामों के लिए, उसकी स्थापना जो शुरू हुई, गंधारा स्कूल उसको कहा जाता है, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. ये शुरू हुआ 2nd सेंचुरी BCE इन अफ़गानिस्तान एंड उसके नेबरिंग रीजन्स में. एंड वो जो इंस्पायर हुए, वो इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था ग्रीक एंड पर्शियन से. द 1st and 3rd century CE, that is the Kushana period, saw the rise of Mathura school of art. The Mathura school of art laid the foundation of Indian iconography. 1 से 3री सदी में, that is the 1st and 3rd century
दैट इज़ द कुशाना पीरियड। जो कुशाना पीरियड था, उस पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत हुई, जागृति हुई, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक फाउंडेशन हुआ ऑफ आर इंडियन आइकोनोग्राफी। सो यहाँ पे मैंने आइकोनोग्राफी का एक डेफिनेशन बताया गया है और मैंने लिखा है iconography is the branch of knowledge which includes everything about making images of gods and goddesses. So iconography क्या है? iconography एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें उस नॉलेज में हमें पूरी जानकारी है हमारे देवी देवताओं की मूर्ति बनाने की। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन इन इंग्लिश। Iconography is the branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses. The Kushanav kings made use of these images. जो कुशनव राजा तो थे, उन्होंने इस इमेजेस को यूज़ किए ऑफ वेरियस डाइटीज़ ऑन देयर कॉइन्स। कुशनव राजा ने हमारे देवी देवताओं के या फिर कुछ इमेजेस को यूज़ किया उनके कॉइन्स पर, मोहरों पर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द iconographic rules were formulated and standards of sculptures art were set. सो गुप्ता एम्पायर जब भी शुरू हुआ, उन्होंने आइकोनोग्राफी पे कुछ रूल्स सेट किए और कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वर डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स ड्यूरिंग द 9th and 13th सेंचुरी। ये जो आइकोनोग्राफी शुरू थी पहले, वो पहले बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के या फिर किसी कॉइन्स पे उसको एम्ब्लेम यूज़ करते थे, मीन्स उसको बनाते थे। फिर जो 19th और 13th सेंचुरी थी जिसमें चोला किंग्स थे, उन्होंने फिर मेटल मतलब ब्रॉन्ज या फिर किसी धातु की मूर्तियाँ बनानी शुरू की। यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। There are number of rock cut caves in India. The tradition of rock cut caves originated in India in 3rd century BCE. Technically, the entire composition of rock cut caves represents a union of architecture and sculpture art. Rock cut caves माने पूरे पत्थर की गुफा, एक पूरे पत्थर को गुफा में रूपांतरित करके उस गुफा में अलग अलग किस्म के स्कल्पचर्स बनाना हमारी एक ट्रेडिशन शुरू थी फ्रॉम 3rd सेंचुरी। और ये एंटायर थिंग जो है रॉक कट केव्स के में जो रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर्ट की। द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे। जो पेंटिंग्स है उस गुफा के अंदर, उनके दीवारों पर, उनके छतों पे, वो आज भी तरोताज़ा है आज की तारीख तक। द एंड वेरूल इन महाराष्ट्र आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983। जो अजंता केव्स एंड वेरूलची लेणी, ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किए गए थे 1983 में। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया had reached its peak by 8th century CE. This is easily testified by the magnificent composition of the Kailash temple of Verul. जो आर्किटेक्चर थे टेम्पल के, जो डिज़ाइंस थे, आर्किटेक्चर माने डिज़ाइंस, अलग अलग वास्तु की डिज़ाइंस जो थी, वो एक पीक मतलब एक ऊंचाई पे पहुंच गई थी 8th सेंचुरी में, जब ही एक सुंदर स्कल्पचर बनाया गया था जो दिखा था, वो था कैलाश टेम्पल वेरूल में। वेरूल की लेणी में जो मैंने बताया था कैलाश टेम्पल है, वो एक सुंदर मैनिफेस्टेंट कंपोजिशन जो क्रिएशन है वो रिसेंबल करता है हमारे
आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को। By the medieval period, various styles of sculpture, various types of temple architects have developed in India. So उसके बाद की जो medieval period स्टार्ट हुआ उसमें बहुत सारे temples और नए आर्किटेक्ट्स डेवलप हुए। यहाँ पे मैंने एक इमेज शेयर की है अजंता केव में जो 19th नंबर का एंट्रेंस है उसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन की और स्कल्पचर की। The styles of temple architecture are identified by the style of the tower शिखर। द स्टाइल्स ऑफ टेम्पल, जो टेम्पल के हमारे आर्किटेक्चर है वो एक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे शिखर, जैसे कि हम कहा जाता है मंदिर के ऊपर कलश जो बोलते हैं ना, सो वो रिसेंबल करता है हमारे स्टाइल को। द नागारा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया आर द टू प्रिंसिपल स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल। जो नॉर्थ साइड में जो नगारा स्टाइल है शिखर की, मतलब कलश की, कलश मंदिर के ऊपर जो रहता है, वो एक पहचान बन गई नॉर्थन स्टाइल की, दैट इज़ नगारा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। और साउथ में द्रविड़ा स्टाइल फेमस हुई कलश की, विच दिस टू आर द प्रिंसिपल स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल। ये दो मेन स्टाइल्स समझे जाते हैं टेम्पल्स के इंडिया में ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। अ ब्लेंड ऑफ दीज टू स्टाइल्स इज नोन एज विसारा स्टाइल। ये जो दो स्टाइल्स है उनको, उनके जो मिश्रण या फिर उनके जो कह सकते हैं हम एक साथ अगर मिलाए तो उसे कहा जाता है विसारा स्टाइल। द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज़ अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू द नगारा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। जो भूमिजा स्टाइल है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मंदिरों की, वो क्लोजली इन्फ्लुएंस हुई है, मतलब उन्होंने उसमें से इन्फ्लुएंस लेकर हमारे जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो मंदिरें बनाई गई है वो उनसे इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस लेके बनाई गई है। द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स आर रीअरेंज्ड विच बिकम स्मॉलर टूवर्ड्स द टॉप। मतलब नीचे बड़ा, और जैसे कोन रहता है, कोन को अगर हम उल्टा करेंगे तो कोन नीचे से बड़े से छोटे की तरफ जाता है एज अ माउंटेन। सो ये जो बताया गया है इन द भूमिजा स्टाइल, द सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स, जो छोटे छोटे टावर्स है वो विच बिकम स्मॉलर टूवर्ड्स द टॉप, जो टावर नीचे से बड़े होते हुए ऊपर तक छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज शेयर की है द्रविड़ा स्टाइल गोपुरा की। Qutub Minar. In the medieval period, under the patronage of Muslim sultanates, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic, pre-Islamic, native Indian styles were blended together, creating an Islamic architecture of India. जो medieval period था जहाँ पे मुस्लिम सुल्तानेट्स का राज तभी शुरू था, तभी उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर्स थे वो थे पर्शियन स्टाइल्स के थे, सेंट्रल एशियन स्टाइल्स के थे, अराबिक स्टाइल के थे, प्री इस्लामिक नेटिव इंडियन स्टाइल्स के थे। सो इंडियन इस्लामिक्स ने इन सभी, जैसे कि पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अराबिक, प्री इस्लामिक, इन सब को मिलाकर एक अपना खुद का स्टाइल इन्वेंट किया, बनाया। उसका नाम था इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। Many beautiful buildings were created, from which the Qutub Minar at Mehrauli near Delhi, Taj Mahal at Agra, Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka are world famous example of Islamic architecture of India. So अभी मैंने जो नाम लिए वो from which the one comes under the 7 wonders of the world, that is the Taj Mahal, दिल्ली का कुतुब मीनार हम सब जानते हैं, गोल गुम्बज जो बीजापुर कर्नाटक में है। ये तीन जो चीज़ें हैं और ऐसे कई वास्तुएं हैं जो रिसेंबल करती है, जो
बताती है इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में इंडिया में। कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट मीनारेट in the world. It is 73 meters, that is 240 feet in height. जो कुतुब मीनार है वो हाईएस्ट मीनियरेट है पूरे जग में। उसकी हाइट है 73 मीटर्स, दैट इज़ 240 फीट्स। और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। साथ ही ताजमहल मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बंधवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज़। ये स्टोरी तो हम सबको मालूम है। द ताजमहल इज़ लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो ताजमहल जो है वो भी एक एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन इंडिया। द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। सो यूनेस्को जो है उन्होंने हमारे ताजमहल को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था। एंड इट इज़ काउंटेड एज द वन ऑफ द 7 वंडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। गोल गुम्बज। द गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका वॉज बिल्ट इन द 17th century। गोल गुम्बज बीजापुर में 17th century में बंधवाया गया था। द ग्रैंड बिल्डिंग हाउसेज द बरियल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। जो आदिल शाह थे बीजापुर के, उनको वहाँ दफनाया गया है। इनसाइड द डोम आफ्टर विच द बिल्डिंग इज़ नेम्ड देयर इज़ अ ग्राउंड गैलरी। इवन अ स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन द गैलरी कैन बी हर्ड एवरीवेयर एंड इफ somebody claps from here it's an echo can be heard many times। सो ये गोल गुम्बज क्यों कहा गया है? सो यहाँ पे एक प्रकार की वैशिष्ट बात है, ऐसी है कि अगर उधर एक गैलरी है, वहाँ पे एक जगह है गोल गुम्बज में जहाँ पे अगर आप धीमी आवाज़ में भी बात करोगे या फिर वहाँ खड़े रह के आप ताली भी बजाओगे तो आपको एको साउंड सुनाई देगा बार बार। फिर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, जो है हमारा CSMT। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज इन इंडिया। ब्रिटिश राज के टाइम पे एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल इंडिया में शुरू हुआ। इट इज़ नोन एज इंडो गोथिक एग्रीकल्चरल स्टाइल। बिल्डिंग्स लाइक चर्चेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, residence of top officials, railway stations were built in this style during the British period। जो इंडो गोथिक एग्रीकल्चरल स्टाइल आर्किटेक्चरल स्टाइल था, सो ब्रिटिश ज़माने में इन स्टाइल में चर्चेस बांधे गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस बांधे गए। जो टॉप ऑफिशियल्स थे, जो एक पर्टिकुलर हाई पोस्ट के जो ऑफिशियल्स थे, उनके घर इस स्टाइल में बांधे गए। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस जो है वो इस स्टाइल में बांधे गए ब्रिटिश पीरियड में। द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस in Mumbai is the finest example of Indo-Gothic architecture and it is a World Heritage Site। जो हमारा CSMT है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वो एक एग्जाम्पल है इंडो गोथिक आर्किटेक्चर का और ये वर्ल्ड हेरिटेज